Hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks, and this was my second attempt. So this was the video that I was thinking to make, from past so many weeks, but I was not getting the NEET date. So now finally the NEET date has been announced. I have already made a video on it that 17th of July is your NEET 2022 date. So almost from now we have 3 exact months. So what are the do's and don'ts that you should do in last 3 months, and what is the importance of this 3 months? And also I just want to talk about the few things except the marks issue that we face in the last 3 months that generally no one talks about. So let's get started with this video. In last 3 months except the marks issue that student face generally कि marks नहीं बढ़ रहे and all that, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो last 3 months में बहुत increase कर जाती हैं, and obviously they are not good for exams or preparation or anything. So I just want to mention that first of all in last 3 months only we start comparing ourselves with everyone कि इसका तरीका मैं अपना लूँ, इसका तरीका मैं अपना लूँ, not realizing that our own technique might be good and we are getting success that from that technique, but still we start analyzing that my way of doing or approaching the chapter is not correct. That's why marks are not increasing so much and all that. So you should stop comparing yourself with anyone. The last 3 months is all about you, and you have to gain confidence, and the gain in the confidence will occur only if you try to follow your own way rather than comparing yourself with any of your colleagues or any of your friends that who is getting maybe much better marks than you. So stop doing that. Also continuous demotivation, depression, anxiety, all this issue are common for all the NEET aspirants, and let me tell you, these issues are not common for those students who are scoring less marks, but also for the students who are scoring good marks. For example, there are students who score 620, 630, 640, but still they have anxiety, still they are not happy with their preparation. They are still like कि NEET वाले दिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं, why my marks is not like going 700 and plus and all that. And also overthinking and connectivity with the exam. We overthink so much about the exam in our free time. We try to connect the NEET exam with our life so much that we ended up having nothing profit. For example, student do connect with this exam so much कि अगर मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा. डोंट कनेक्ट दिस एग्जाम विद योर लाइफ कि ये एग्जाम नहीं हो पाए तो मेरे लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. जस्ट फोकस लास्ट 3 months. It's all about your preparation. It's all about biology, physics and chemistry. Nothing should be come in your mind. No comparison, no overthinking, no anxiety, no depression. ये सबको साइड रख दो. अगर आ भी रहे हैं तो इस सब के लिए टाइम नहीं है. This is gonna waste your energy, time and everything. So now let's come to the main point about what is the actual preparation that you should do in last 3 months. So last 3 months are very very crucial, let me tell you, because not personally in my prep time, but there are student who's for them last 3 months was like so important for them. For example, one of my friend from the same college, Medical College Vadodara, Dhruv Balchandani, when I met first time with him, he told that 3 months ago only his score was 280 and 290 in his mock test, not in biology, but in his mock test his score used to be 280, 290, and in last 3 months only he prepared so well. He extensively hard work, he analyzed his test, and he just become a psychopath for his studies on NEET and I don't know what. But now he scored 618 marks after 3 months, and he's in my college. He's one of my friend, and the moment he narrated me this story, I was like मैं ये ज़रूर बताऊंगा अपने NEET एस्पिरेंट्स को कि लास्ट 3 महीने कितने ज़्यादा क्रूशियल होते हैं. आई डोंट नो आप किस कैटेगरी में फॉल करो, आपके 350 आ रहे होंगे, आपके 400 आ रहे होंगे, आप मे बी 500 पर अटक चुके हो या 550 पर अटक चुके हो या 450 पर अटक. इफ यू इमेंसली हार्ड वर्क फॉर लास्ट 3 months, you can definitely score 600, 650 plus or any of the target, and that also depends upon how smartly you hard work. It's not like 3 महीने सिर्फ NCERT की बुक जितनी बार मैं पढ़ सकूँ पढ़ लो. That is bullshit. You have to, in terms of question practice, in terms of test series, in terms of analyzing your test, in terms of doubt solving, in terms of NCERT revision, all the things will combine and will lead to the best score for your marks. So starting with my last 3 month strategy, the most important thing that is going to play the role in this 3 month prep will be test series. I always tell you, जो आपको वहाँ 3 घंटे बैठ के देना है, क्यों उसी की प्रैक्टिस कर करके हम अपने आप को इम्प्रूव करें. पीपल जस्ट उनको वो पसंद है 3 month स्ट्रेटेजी में कि वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, वो लोग NCERT पढ़े पर उनको टेस्ट ना देना पड़े. बट लेट मी टेल यू, टेस्ट इज द ओनली वे दैट यू हैव टू गिव इन दोज 3 hours. So why not to practice test only? Why not to improve our marks, improve our knowledge and improve our NCERT knowledge and improve our skills through test only? That is the only way to increase your marks. From now onwards, give 1 week time to yourself. You have to start your test series on 20th of April. आप अभी जाओ, कोई ऐसी टेस्ट सीरीज खरीदो. अगर आपकी कोचिंग में अवेलेबल है, वो चालू कर रहे हैं, देन इट्स वेरी गुड. लेकिन आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है एंड यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ कोचिंग, यू आर जस्ट प्लानिंग टू बाय एनी टेस्ट सीरीज, तो कोई भी अच्छे कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो. आप कोई भी साइट को फॉलो करते हो जो आपको लगता है रिलायबल टेस्ट सीरीज देती है, तो उनकी टेस्ट सीरीज खरीदो एंड मेक श्योर दैट उनके टेस्ट सीरीज में पार्ट टेस्ट, इंडिविजुअल चैप्टर टेस्ट भी हों एंड फुल सिलेबस टेस्ट भी हों. एंड आपको क्या करना है, आपको 20th of April से अपने टेस्ट चालू करने हैं. 20 अप्रैल से आपको अपने टेस्ट चालू करने हैं. टिल देन
1 वीक का टाइम है आपके पास, जितने भी वीक चैप्टर हैं और जितने भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनकी लिस्ट बनाओ और वीक चैप्टर्स पे वर्क करना चालू करो. फॉर एग्जांपल, योर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन आर वेरी माइट बी द वर्स्ट फॉर नाउ, सो स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब पे लेक्चर्स है वन शॉट. अगर आपके प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, आपको चैप्टर समझ में आता है लेकिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, जो भी आपका इशू, जितने भी आपके वीक चैप्टर है जो आपको लाइक डर लगता है कि ये नीट में मुझसे नहीं हो पाएंगे, उन पे वर्क करो. एनसीईआरटी रीडिंग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे डाउट्स अपने क्लियर करो और जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ें, जितने भी समरी पार्ट है वो सब लाइक वाइंड अप करो. जितने भी आपके वीक चैप्टर हैं ये सारी चीज़ों को ऐड करके वाइंड अप करो. और 20 अप्रैल से आप अपना चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चालू कर देना तक. फ्रॉम 20 अप्रैल टू 10 जून इज द डेट कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको खत्म कर देने हैं. फॉर एग्जांपल, आप 20 अप्रैल को अपना फर्स्ट टेस्ट दे रहे हो, 4 या 5 दिन बाद आप अपना दूसरा टेस्ट दो, या वीक में 2 बार रख लो, एक वेडनेसडे दो, एक संडे को दो. लेकिन हाँ, 4-5 दिन फिर उन्हीं चैप्टर के बारे में पढ़ना. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आपका कोई भी पार्ट टेस्ट है उसमें मे बी यूनिट डायमेंशन से लेके वर्क एनर्जी पावर तक आ रहा है. केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग तक आ रहा है. बायोलॉजी में आपका यूनिट 1 आ रहा है आपका, जिसमें लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायो क्लासिफिकेशन है. तो सिर्फ 4-5 दिन, जब आपको पता है कि 4-5 दिन आप इसी का टेस्ट देने वाले, तो सिर्फ वो 4-5 दिन उसी चैप्टर के बारे में पढ़ो. एक्सटेंसिव एनसीईआरटी रीडिंग, समरी रीडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनालाइजिंग योर प्रीवियस टेस्ट की अगर ये चैप्टर के जो पुराने अपने टेस्ट उसमें आपने क्या गलतियां की थी, क्या आपका वीक पार्ट है, डायग्राम की लेबलिंग से लेके हर चीज़. सिर्फ 4-5 दिन सिर्फ उन्हीं चैप्टर के बारे में सोचो, उन्हीं चैप्टर पे सारा हार्डवर्क करो और फिर 4-5 दिन बाद जस्ट गिव योर टेस्ट. वो टेस्ट दोगे, मार्क्स तुरंत आ गए देन वेल एंड गुड. अगर 1 या 2 दिन बाद आता है तो जब भी आपका मार्क्स आए, जो भी मार्क्स आए, डोंट गेट डीमोटिवेटेड. उस सब का टाइम नहीं है हमारे पास. बहुत कम आपके मार्क्स आ सकते हैं, 200 के रेंज में आ सकते हैं, 300 के, 400 के में, जो भी रेंज हो उसको एक्सेप्ट करो. नोटबुक खोलो. मैंने बताया था कि एनालिसिस या रिव्यू की एक आपको नोटबुक बनानी है. सो स्टार्ट राइटिंग ऑल योर रॉन्ग आंसर्स एंड उनका सोल्यूशन, और फिर उसके नीचे रीजन कि वो क्यों गलत गया. फॉर एग्जाम्पल, आपका यूनिट डायमेंशन का किसी का आपको डायमेंशन नहीं आता था. डायमेंशन क्यों नहीं आता? क्योंकि मे बी आपको उसका फॉर्मूला नहीं आता. अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप डायमेंशन उसका निकाल लेते. तो सोल्यूशन लिखो और उसके नीचे रीजन लिखो कि फॉर्मूला नॉट रिमेंबर्ड. ऐसे ऐसे हर एक रॉन्ग आंसर का कोई ना कोई रीजन लिखो. बायोलॉजी का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, आपको समझ में आया था, मे बी वो क्वेश्चन, आपको नॉलेज भी थी इस क्वेश्चन की, स्टिल आपने गलत कर दिया. क्यों? क्योंकि मे बी आपको मेमोराइजिंग पावर आपकी अच्छी नहीं थी, आपने एग्जाम्पल्स में गलती कर दी. आपको नहीं पता था कि ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटिस में आता है, आपने मे बी बेसिडोमाइटिस में क्लिक कर दिया. तो नीचे रीजन लिखो कि एनसीईआरटी नॉलेज नॉट क्लियर, या सिली मिस्टेक मैंने कर दी, क्वेश्चन रीड नहीं किया. राइट ऑल द स्टूपिड रीजन दैट यू कैन राइट अपने उस सारे क्वेश्चन के नीचे जो आपको एक्चुअली में लगता है. उसको रिवाइज करो और अगले टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ. अब अगला टेस्ट में मे बी फिजिक्स में आपका वर्क एनर्जी पावर के आगे वाले चैप्टर होंगे, बायोलॉजी में आपका यूनिट 2 होगा, केमिस्ट्री में भी आपका स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर होंगे. तो बस अब वो 4-5 दिन वो चैप्टर के पीछे एकदम डिवोट कर दो. सो लाइक दिस फ्रॉम 20 अप्रैल टू 10 जून आप अपना ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट दे के अपने चैप्टर्स क्लियर करो. यू वोंट बिलीव, अगर आप ये 10 जून तक अपने चैप्टर्स वाइज टेस्ट देते कि ऐसे क्लियर कर लिए, आपका नीट का 90 to 80% सिलेबस बहुत अच्छे से हो चुका है. अगर आपने सबका एनालिसिस किया होगा और सब टेस्ट की एकदम अच्छे से प्रिपरेशन की होगी. मैं 10 जून तक इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज लास्ट 1 मंथ शुड बी कंपलसरी गिवन टू फुल सिलेबस टेस्ट. लास्ट के 1 महीने में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. लास्ट के 1 महीने में आपको सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देना है. तो 10 जून से लेके 15 जुलाई तक, आपका नीट है 17 जुलाई को, तो 15 जुलाई शुड बी द लास्ट डेट जब आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए. फिर आपको 16 को चिल करना चाहिए. सो 10 जून से लेके 15 जुलाई तक मुझे लगता है आपको सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए हर 2 या 3 दिन पे. अल्टरनेट डे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा टेस्ट, उतने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, हर 2 दिन पे या हर 3 दिन पे आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है. और फुल सिलेबस टेस्ट का अब तो कोई सिलेबस है नहीं कि आपको 2 दिन में पढ़ नहीं पा रहे. अब 2 दिन में पूरा नहीं पढ़ पाओगे, 2 दिन में पूरा नहीं पढ़ पाओगे. उसमें आपको करना क्या है, आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे चुके ऑलरेडी. अब आपको पता है कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर थोड़ा अभी वीक है. तो आपको सिर्फ वो एक फुल सिलेबस टेस्ट के बीच में आपको अपने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर ही पढ़ने. आपको 2 या 3 दिन के टाइम स्पेन में पूरा 11-12 रिवाइज नहीं करना. आपको अपनी वो 2-3 दिन के बीच में जो आपने रिव्यू और एनालिसिस वाली नोटबुक बनाई उसको कंटिन्यू रिवीजन करना है, ताकि आप अपनी गलतियों को रिवाइज कर सको. आप क्या गलतियां कर सकते हो. दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे यू कैन प्रिपेयर. इफ यू रिवाइजिंग योर ओन मिस्टेक, रिवाइजिंग योर एनालिसिस बुक इज द गोल्डन टिप दैट आई शुड गिव टू ऑल द एस्पिरेंट्स. अगर आप अपनी गलती याद रखोगे कि आप क्या गलती कर सकते हो, तब आप गलती नहीं करोगे. So this is the key point that you should keep in your mind. Learn every day of formula sheets, 2 to 3 hour NCERT extensive reading. Obviously from 10 June to 15 July,
हर एक टेस्ट दोगे, जो भी आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे उसका भी एनालिसिस करोगे और नई गलतियां पता चलेंगी. यू विल वर्क हार्ड मोर ऑन देम, यू विल ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. ऑब्वियसली बाई जून एंड यू विल स्टार्ट स्कोरिंग योर ड्रीम मार्क्स. आई एम टेलिंग यू, if you are following like this blindly without any distraction, without any depression, anxiety, comparison and all that issue, and keeping aside your all hobbies for few months, I really think that if you follow this schedule, by end of the June you will get a clearance and you will get that marks, that dream marks that you are thinking. And then if you scored a good marks in June and your July will be, you know, kind of relief. There will be no tension, there will be no mental stress. You can just मेक योर सेल्फ मेंटली काम कि अब मेरा 17th ऑफ जुलाई को पेपर आ रहा है एंड आई हैव टू गिव दैट एग्जाम विद ऑटमोस्ट ईजनेस, विद ऑटमोस्ट कामनेस, विद फुल पेशेंस. वो भी एग्जाम फियर, कुछ भी एंग्जाइटी नहीं होना से एकदम चिल होकर दोगे. वो तभी होगा अगर आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग होगी. जिनकी प्रेपरेशन बहुत स्ट्रांग होती है, हु आर कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड, उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं आती. सो अगर आपको आ रही है तो ये लास्ट 3 मंथ जो मैंने आपको शेड्यूल बताया कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दो, अपने चैप्टर्स क्लियर करो, उसके बाद 10th ऑफ जून से लेकर 15th ऑफ जुलाई तक हर दूसरे या तीसरे दिन फुल सिलेबस टेस्ट दो, उनको भी एनालिसिस करो, उनको भी गलतियां रिवाइज करो, रेगुलर फॉर्मूला का रिवीजन हमेशा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार कर सकते हो करो. दीज आर द की पॉइंट्स. अगर आप ये सबको सीक्वेंस में एक्सटेंसिवली लगे हुए हो, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ, देन यू विल गेट योर डेफिनेटली द ड्रीम मार्क्स दैट you are thinking, and then obviously your NEET will be successful this year. So I hope you like my video. So this was my personal 3-month strategy that you should follow, because test is the only way that we can improve our marks. You can follow me on my Instagram handle right below over here, and you can comment all your doubts. I will love to reply them. Till then, best of luck for your prep. All the best for everything, and just keep shining.